7 لوگوں کو ہاتھ ملائیں, گلے ملیں اور انہیں ہیپی نیو ایئر بولیں. اور میں رات کو لیٹ نائٹ جاگتا رہا ہوں, میں بیک ہوم ہیڈ کوارٹر سے کنیکٹ رہا ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے فادر اس ایئر کو کیا ڈکلیئر کرتے ہیں. تو جیسے ہی میٹنگ اینڈ ہونے کے قریب تھی, انہوں نے بتایا کہ خداوند نے مجھے کہا ہے کہ 2023 جو ہے میرے لوگوں کے لیے پریز کا ایئر ہے. اور پریز کنیکٹڈ ہے آپ کی پراسپیرٹی کے ساتھ. کس سے کنیکٹڈ ہے؟ اسی بات میں بولے, پریز وہی کر سکتا ہے جو بندہ شادمان ہوتا ہے, جو بندہ خدا میں مسرور ہوتا ہے. جو دکھی ہے, پریشان ہے, وہ پریز نہیں کر سکتا. ہاللیلویہ. ایون خدا کی ورشپ کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, ایون خدا کی ورشپ کے لیے. اس لیے خدا اس سال میں آپ کے منہ کو اپنے پریزز سے بھرنے والا ہے. جیسے آلریڈی میں نے بتایا کہ 80 جو ہیڈ آف دا ایئر ہے, 57-83 جو 80 ہے, اسے عبرانی زبان میں پے بولتے ہیں. اور پے ڈیڈی نے اسے یوں انٹرپریٹ کیا ہے کہ خدا نے ان سے بولا ہے اس سال آپ کے منہ میری حمد میں بھرے رہیں. کیسے؟ اس نے کہا تو اپنے منہ کو کھولے گا, میں تیرے منہ کو بھر دوں گا. جب اس سال آپ پریزز کریں گے, خدا آپ کو برکتوں سے مالامال کر دے گا. اور پتہ نہیں کیوں اس کرسمس کی مارننگ سروس میں میرے دل میں آ رہا تھا کہ ہم ایک رابل کے لیے پروگرام رکھیں گے. کدھر گیا رابل؟ اوکے, مسز رابل سن رہی اور کن کے لیے تعلیم جا رہے ہیں. تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ بچوں نے ٹیبلو کیا, اس کے بعد سارے دور جانے کا کہ نیکسٹ ایئر ایونجلسٹ خالدہ کے پلاٹ میں ہم پاورفل صرف ورشپ پروگرام کریں گے. جو ورشپ پر ہیں مشہور کو بلائیں گے اور لمبی ورشپ ہوگی. پاورفل لوگوں کو, مطلب عام لوگ نہیں, مطلب وہ جو خان صاحب ٹائپ نہیں, جو انوائنٹڈ لوگ ہیں. پاکستان میں بھی کچھ لوگ انوائنٹڈ ہیں, تو ان کو بلائیں گے تاکہ وہ پاورفل ورشپ کریں. ہاللیلویہ. تو مجھے بھی پتہ نہیں کیوں یہ انسپریشن آ رہی تھی. پھر لاسٹ نائٹ بھی میٹنگ کا اینڈ جو ہے ایسے ہی ہوا. ہاللیلویہ. کتنوں کو پتہ ہے آلریڈی ہم اپنے فادر کے ڈی این اے میں کنیکٹڈ تھے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آلریڈی ہم اپنے فادر کی اسپرٹ میں کنیکٹڈ تھے اور ہمارے اسپرچل فادر سے ہیونلی فادر روبرو کلام کرتے ہیں. جسٹ لائک موزیس. میں دیکھ رہا ہوں ایگزیکٹلی جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں, میں وہی آپ کے لیے پڑھوں گا اور میں اس کو بیان کروں گا. آمین. تو خداوند نے ڈکلیئر کیا ہے یہ سال آپ کی پریزز کا سال ہے. خدا آپ کے منہ کو اس کی حمد سے بھرنے والا ہے. تشریف رکھیے گا. Sit down and never go down. Sit over your enemies. میں وہ انگلش میں پڑھوں گا اور اردو میں بھی بیان کروں گا. انہوں نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے ہیپی نیو ایئر 2023. The year 2023 is the year of praises because you will praise God. The year of bouncing up because our Heavenly Father will astonish you. Amen. The year of bouncing up. دو چیزیں اس بات کے اندر لکھ لیں, نوٹ کر لیں کہ ڈیڈی نے بتایا پوائنٹ نمبر 2 میں کہ یہ سال آپ کو باؤنس بیک کرے گا. جس پوزیشن سے آپ دیکھیں, جیسے گیند ٹھپے کھاتی ہے اسے باؤنسنگ کہتے ہیں. گیند ٹھپے جب کھا رہی ہوتی ہے تو میں بھی آپ نیچے چلے گئے ہیں, لیکن خدا آپ کو دوبارہ پاپ اپ کرے گا. آپ باؤنس بیک ہوں گے. یہاں سے جس بلندی سے آپ گرے ہیں, جس معیار سے آپ گرے ہیں, جس سٹینڈرڈ سے آپ گرے ہیں, خدا اس سٹینڈرڈ سے اگلے سٹینڈرڈ پر آپ کو لے کر جائے گا. اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ Because the heavenly Father will astonish you. کیونکہ آسمانی باپ آپ کو حیران کرے گا. پوائنٹ نمبر 3 ڈیڈی نے بتایا ہے, the time of shame
is over. اپنے ساتھ والے کو کہہ دیں the time of shame is over. بولے شرمندگی کا تیرا وقت ختم ہو گیا. بولے شرمندگی کا تیرا دور ختم ہو گیا. شرمندگی کا تیرا دور ختم ہو گیا. آگے میں نے لکھا ہے you wouldn't ever feel shame because you have overcome. کیوں شرمندگی نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل پر غالب آنے والے ہیں. آپ اپنے دشمنوں پر غالب آنے والے ہیں. آپ اپنی ناکامی پر غالب آنے والے ہیں. آپ اپنی کمزوری پر غالب آنے والے ہیں. آپ اپنی پرابلمز پر غالب آنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اوور کم کروں گا تاکہ تم دوبارہ کیا نہ ہو، شرمندہ نہ ہو. Year 2023 is the year of eradicating your shame. یعنی بالکل اریڈیکیٹ کر دے گا. ڈیلیٹ تو پھر ڈیلیٹ جو ہم کرتے ہیں نا وہ پھر آپ کے ریسائیکل باکس میں چلی جاتی ہے، پڑی ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر یا موبائل کے اندر وہ فائل. پر اریڈیکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جڑ سے اکھاڑ دینا. یعنی اس سال خداوند بہت ساری لیول میں جو شرمندگی آپ کی لائف میں جڑ سے اکھاڑنے والا. میں ڈکلیئر کرتا اپنے فادر کے ورڈز کو آپ کی لائف میں، ہماری زندگیوں سے خدا شیم کو جڑ سے اکھاڑ دے. پھر انہوں نے لکھا ہے you wouldn't stumble. یعنی اس کو میں ایسے بیان کروں گا کہ سال کہیں پر بھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی. آپ کی رہنمائی کرے گا. نیکسٹ لکھا ہے you wouldn't ever feel the need of crying again over a mistake or an embarrassing. آپ نے ٹوٹل اپنی شرمندگیوں کو بھول جانا. ٹوٹل اپنی ناکامیوں کو بھول جانا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بعد وقت آپ کو کوئی فلاں جگہ میں ہار گیا تھا، فلاں جگہ میں فیل ہو گیا تھا، آپ یاد کر کے رونے بیٹھ جائیں. یعنی ماضی کو یاد کر کے رونے نہیں بیٹھ جانا. خدا ریڈیکیٹ کر دے گا یسوع کے نام سے. پھر میں نے لکھا you will give thanks to God because He will rise you to the new level. Next level لکھا. کیا لکھا ہے؟ New level. Next level کیا ہوتا ہے کہ next level اس level پر already کوئی ہے. Next level اچھا level ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے میں اس جگہ پر آ جاتا ہوں تو یہ نیکسٹ لیول ہے. یعنی یہاں کوئی اور آلریڈی موجود ہے لوگ. پر نیو لیول کا مطلب کیا ہے کہ اس لیول پر آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اس لیے اسے نیا نام دیا گیا. اور یعنی کہ بجائے اس سال میرے بیٹے اور بیٹیاں آل اوور دا ورلڈ نیکسٹ لیول پر نہیں، اس لیول پر جائیں گے. جب آپ کو کوئی برکت ہے نا کوئی آپ نیکسٹ لیول پر جیسے کہ نہیں سوری میں آپ کے ورڈ کینسل کرتا ہوں، اس لیول پر آلریڈی لوگ ہیں، میں نیو لیول پر جانا ہے. آپ کو خدا نیو لیول پر لے کے جائے. آپ اس لیول کے پائنیئر ہو، آپ اس لیول کے فاؤنڈر ہو، آپ اس ڈائمینشن کے پائنیئر اور فاؤنڈر ہو. آپ کے پہلے کام یہ میں نے کیا ہے. ہاللیلویا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں نیو لیولز ان جیسس نے. فائنینسز میں نیو لیول ہو، ٹریولنگ میں نیو لیول ہو، ایجوکیشن میں نیو لیول ہو، وزڈم میں نیو لیول ہو، بزنس میں نیو لیول ہو، بچوں کی ایجوکیشن میں نیو لیول ہو. خدا آپ لوگوں کو نیو لیول دے. اگر انہوں نے لکھا ہے you will no longer be able to rely on yourself because God will take you out of that position. یعنی اس سال آپ کو اپنی صفائی نہیں دینی پڑے گی، اپنا جواب نہیں دینا پڑے گا. خدا آپ کو ایک اور پوزیشن پر لے جائے گا. یعنی آپ لوگوں کو صفائیاں نہیں دیتے پڑیں گے. کیا ہے کیا ہے لکھا ہے you will no longer able to rely on yourself because God will take you out of that position. جس پوزیشن پر آپ سے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں اور آپ سے کوشچن کر رہے ہیں، خدا اس جگہ سے آپ کو ایک نئی جگہ پر لے جائے گا. یعنی کچھ لوگوں کی پوزیشن چینج ہونے والی ہے، آپ کی پوزیشن چینج ہونے والی ہے، آپ کی پوزیشن چینج ہونے والی ہے. خدا آپ کو ریلوکیٹ کرنے والا ہے، کچھ لوگوں کو خدا ریلوکیٹ کرنے والا ہے. He will also demonstrate to you that he is always there for you. خدا اس سال پریکٹیکلی طور پر ثابت کرے گا، فزیکلی طور پر پروو کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. صرف وہ پنجابی کہتے ہیں گلی باتی نہیں، خدا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ میں پاسٹر کرسٹی کے ساتھ. اپنا نام بولے، اپنا نام بولے، اپنا نام بولے. خدا ثابت کرے گا کہ اس سال
خداوند رسول عمر کے ساتھ ہے، اس سال خداوند رنجش خالدہ کے ساتھ ہے، اس سال خداوند مسز رابل کے ساتھ ہے۔ خدا پریکٹیکلی ثابت کرے گا کہ وہ بیٹی فوزیہ کے ساتھ ہے، اس سال پریکٹیکلی ثابت کرے گا کہ وہ پاپا شوکت گل کے ساتھ ہے، اس سال وہ ثابت کرے گا کہ وہ بجینم کے ساتھ ہے، پریکٹیکلی ثابت کرے گا۔ ڈیڈی نے کہا کہ اس سال خدا اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ وہ پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہے۔ آمین۔ بارنامہ شیکرے بیچا۔ My God. The year 2023 is the year that cannot be divided hence. It is the year that cannot be compared and is unique in its own. Right? Hallelujah. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہمارا جوبلی سال گزرا ہے، بڑا اچھا اس سے پہلے والے سال گزرے ہیں، پر وہ کہہ رہے ہیں اس سال کو کیلنڈر پر سرکل کر لیں، اس کی خصوصیت، اس کی قابلیت، اس کی برکتیں باقی اچھے سال گزرے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے۔ خدا نے بڑی فیور کی، خدا نے بڑا فضل کیا، خدا نے بڑی برکت دی، پر اس سال کی یونیکنس سب سے منفرد ہوگی۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں یہ سال تمام سالوں میں آپ کے لیے منفرد ہو، تمام سالوں میں آپ کے لیے منفرد ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے a new life. It is a life that you never heard of or seen or imagined. کہ اس سال خدا آپ کو نئی زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ جو لائف سٹائل آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی کا سنا نہیں ہے، خدا آپ کو وہ لائف سٹائل دینے والا ہے۔ We refer to it as spiritual life. اور خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈی کہ خاص طور پر کون سی لائف ہوگی؟ اسپرچول لائف۔ یعنی ایسی لائف کسی نے نہیں گزاری کہ یعنی جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ جان جی لے کتنے گھنٹے دعا کرتا تھا، کیتھرین کولمن ایسی ہے اس کی دعا، بینی ایسے ہے، پاسٹر کرس ویسے ہے، پر وہ کہہ رہا ہے اس سال خدا باڈی آف کرائسٹ میں سے، اسپیشلی فاتح خاندان میں سے، آل اوور دا ورلڈ ایسے بیٹے بیٹیاں کھڑے کرے گا جن کے اندر خدا، جن کے اوپر ہولی اسپرٹ کی پریزنس ہوگی، جو خدا کی حضوری میں ہوں گے، اور وہ ایک ایسا لائف سٹائل ڈیولپ کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں گزارا۔ ہاللیلویہ۔ تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اس پورشن کو میں کلیم کرتا ہوں۔ آلریڈی پرسنلی جب میں آپ کے لیول پر، اپنے لیول پر اس ایئر کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خدا نے مجھے بتایا کہ یہ ایئر آف اسپرٹ اینڈ پراسپیرٹی ہے۔ کتنوں نے سنا تھا؟ رات کو سنا تھا اپنے کانوں سے؟ کیا میں نے بتایا تھا؟ ایئر آف اسپرٹ اینڈ پراسپیرٹی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو سیم جب وہ ڈیڈی اس کی ڈیٹیل میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سال خدا آپ کو ایسا لائف سٹائل دے گا جو پہلے آپ نے نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ امیجن کیا ہے، اور as it is implies a life that you have never heard, a life that is real and strong. خدا آپ کو spiritually strong کرنے والا۔ A new life involves putting your trust in God, letting go of your problem, giving Him control over your life and rely on Him. Amen. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سال ہے آپ کا موسٹلی فوکس خدا پر ہو، اپنی پرابلم پر نہ ہو، اور آپ کا اونلی اینڈ اونلی بھروسہ جو ہے، ٹرسٹ کس پر ہونا چاہیے؟ خدا پر ہونا چاہیے۔ تو تبھی آپ کے منہ سے پریزز نکلے گی، تو پھر آپ اپنی پرابلم کو بھول جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ رونے سے پرابلمز حل نہیں ہوتی، یہ ہم نے اپنے فادر سے سیکھا ہے، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب تک آپ کی نظر اپنی پرابلم پر ہے اور پرابلم کی ٹینشن میں آپ رو رہے ہیں، ایگنی میں، درد میں، آپ دکھ میں آپ رو رہے ہیں، وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب آپ کی توجہ پرابلم کو بھول کر اس پرابلم کے سلوشن کی طرف جائے گی، پرابلم سالور کی طرف جائے گی، مسیح یسوع کی طرف جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک ایسی گواہی ہے کہ تو شخص ویل چیئر پر تھا اور خدا نے کلام کی یہ دونوں نہیں چلیں گے، دو نہیں چلیں گے، پر پہلے ایک چلے گا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرا۔ اور جب یہ نبوتی کلام ہوا تو جو
शख्स था एक काफी उम्र का, उसने एक यंग लड़के को देखा, उसने कहा कि मैं उम्र गुजार चुका हूं, मैं ये सोचता हूं कि मुझसे पहले इसको उठना चाहिए। तो उस बूढ़े शख्स ने अपनी लाचारी को, अपाहिजी को भूलकर उस बच्चे के लिए, उस नौजवान के लिए दुआ करना शुरू कर दी। जीसस क्राइस्ट ने देखा कि इसकी फोकस अपनी प्रॉब्लम से दूर हो गई है। इससे पहले वो लड़का उठता, वो बूढ़ा उठकर चलना शुरू हो गया। हालेलुया। तो सीक्रेट क्या है ये गवाही शेयर करने का, कि जब आपकी मैरिज नहीं हो रही, हटाएं प्रॉब्लम, किसी दूसरे की मैरिज के लिए दुआ करें, किसी दूसरे की मैरिज के लिए। आपके पास घर नहीं है, आप बड़े तंगी में हैं, हर एक को रोना सुना रहे हैं, रोने सुना रहे हैं, रोने ना सुनाएं, किसी की प्रॉब्लम के लिए दुआ करें। बाइबल का सीक्रेट, इवन बाइबल से इसका प्रूफ दूंगा, लिखा है जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, खुदा ने अय्यूब को बहाल कर दिया। हालेलुया। आपका वीजा नहीं लग रहा, रोना सुनाई जा रहे हैं, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरा वीजा, मैं बाउंस बैक हो जाता हूं, नहीं, किसी के वीजे के लिए दुआ, फोकस हटा रहे हैं। आप देखेंगे जब आप अपना फोकस किसी दूसरे के लिए करेंगे और खुदावन पर करेंगे, खुदा से मदद मांगेंगे, मैं आपको कह रहा हूं खुदा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम ये नहीं कि खुदा हल नहीं कर सकता, वो कर सकता है, पर क्यों नहीं करता, हमारी जो तवज्जो सारी है वो अपनी प्रॉब्लम पर, उस पर नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आए इससे रिलेटेड हम आयत देखेंगे, द ईयर ऑफ प्रेजेस, यशाया उसका 43वां बाब उसकी 21वीं आयत देखेंगे, एवेंजलिस्ट खालदा के साथ देखेंगे आयत यशाया। कितने लोगों को जब ये आयत पढ़ रहे हैं, मैं कोई इंटरप्शन करता हूँ, कितने लोगों को कल ख्वाब आया? ओके, क्या देखा आपने? लड़ाई देखी, सिट डाउन। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि हमारे घर में चूंटियां हैं काफी ज्यादा, तो वो ना झाड़ू से हम साफ करें। आप ही हमारे घर पे हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। यस, मैंने देखा आप चाय बना कर दे रहे हैं। ओके। दुपट्टा नहीं है, मैं कहती हूँ बस आप दुपट्टे हैं तो क्यों नहीं जा रही बस आपके पास? ओके। मैंने ये देखा कि मैं जमीन में जा रही हूँ, वहाँ पे खड्डे में खड्डे से नीचे गिरी तो कोई मुझे बता दे तो चाय चार बार। आमीन। बी केयरफुल, बी केयरफुल, सबके लिए बी केयरफुल। इन द रैम ऑफ द स्पिरिट में मैंने देखा है किसी फैमिली के खिलाफ, एक फैमिली है और उन्होंने जादूगरी से एक कैट उनके घर भेजी है और टू मच लड़ाई होने वाली है, टू मच लड़ाई से अवॉइड करना है। कैट विच है, विच ब्लैक और ग्रे कलर का उसका ड्रेस है, ब्लैक और ग्रे ड्रेस है, डार्क ग्रे, ब्लैक ही सब। तो ये क्यों मैंने कलाम स्टॉप करके ये डिक्लेयर किया है कि मैं नहीं चाह रहा कि, और इवन अगर ये मेरे ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी मैंने इसको सुबह पोस्ट किया, प्रेयर किया, कैंसिल किया है। आप लोगों के यहाँ आने से पहले आप भी रात को लेट सोए हैं, पर सुबह उठकर मैंने दुआ की है, आपकी फैमिलियों को कवर किया है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूँ किसी के घर में झगड़ा होने ना पाए, कोई लड़ाई होने ना पाए। अगर कोई लड़ाई का मंसूबा बनाए, अपने कान लपेटे उसके किनारा करें। आज पहला दिन है साल का, ओपनिंग लड़ाई से नहीं हुई चाहिए। भले अगले की गलती है, आपने इग्नोर कर देना, भले उसकी गलती है, लड़ने की वजह बनती है, पर आपने इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि साल का क्या है, पहला दिन है, ओपनिंग लड़ाई से नहीं हुई चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो इग्नोर करना है, किनारा करना, गंद में पत्थर नहीं मारना, छींटे आम पर आएंगी। ओके, हम पढ़ेंगे यशाया 43 बाब उसकी 21वीं आयत। मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। ये आयत है, मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। ये खुदा यशाया नबी को दिखा रहा है। और एक और आयत पढ़ेंगे, 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसका विजन जहां इसकी कॉलिंग हुई है। ये वो प्रॉफिट है जो हायर डायमेंशन में जा रहा है। पहली आयत से पढ़िएगा। जिस साल मैं उजिया बादशाह ने वफात पाई,
मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठा देखा और उसके ये रुकेगा। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। कुछ लोगों का मरना जरूरी है ताकि आपकी आंखें खुले, ताकि आपकी आंखें खुले। तो उजिया, ये जो यसाया नबी है, ये रॉयल फैमिली से था, शाही खानदान से था। तो जब इसका अंकल उजिया बैठा हुआ था, इसकी आंखें उसने बंद की थी, क्योंकि ये सीयर था, ये प्रॉफिट था, पर ये बच्चा था। तो उजिया मैच्योर था, उजिया ने इसकी आंखें बंद की थी। जिस दिन इस किंग उजिया की डेथ हुई, उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी। कुछ दरवाजे आपके नहीं खुलते, कोई आपकी बरकत पर बैठा हुआ है, पर उसको खुदा रिमूव करने वाला है, उसको खुदा रिमूव करने वाला है। आगे बढ़ेगा। उसके पास और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सड़क, यहाँ भी किस चीज का जिक्र है? उसके लिबास से। देखें, कुछ लोग आए तो उनसे बदबू आती है, सारा कमरा में बोय क्या क्या पता नहीं क्या उनसे स्मेल आ रही है। कुछ लोग आते हैं, उनसे कमरे में ऐसे महक हो जाती है, कमरा ऐसे रोशन हो जाता है, उनकी खुशबू से दिमाग रोशन हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर चेहरा नहीं बोला, यहाँ पर लिखा उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। ये नहीं उसकी मामूर हो जाना, ग्लोरियस हो गई, शाइनिंग होगी। ये नहीं उसने इतने ब्राइट कपड़े पहने हुए। आगे उसके आसपास सराफीन खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे थे और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। सारी ज़मीन, ये खुदा की क्या हो रही है? हमद हो रही है। यसाया को खुदा ने आगे जाके 43वें चैप्टर की 21वीं आयत में बताया कि मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। तो यहाँ पर देखें कि ये वो नबी है जो ऐसे अपने से नहीं खाड़ रहा, वो उस डायमेंशन में एंटर हुआ, उस डायमेंशन में, उस रैम में गया है। और वहां पर क्या देख रहा है कि सराफीम एंजल, ये लोअर लेवल के एंजल नहीं है, ये लोअर रैंक एंजल नहीं है, ये शाज़ो नादर लोग देखते हैं। ये एंजल जिनके 6 पर हैं, 2 से वो पांव ढांपते हैं, 2 से, अब मैं can I shock you now? अब देखिए, मैं आपको शॉक करूं, पढ़ेगा स्लो, इसके अंदर बड़ा मुकाशफा है। क्या है? उनके 6 बाजू थे और हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आसमानों की बुनियादें हिल गई। आमीन आमीन। आसमान पर एक ही कोर्स है, कदूस कदूस कदूस। इसी तरह मुकाशफा में भी एक कोर्स है। वहां पर कौन सा कोर्स है? कोई बताएगा? एक ही जुमला बोला जा रहा है, हालेलुया। यहाँ पर क्या है? कदूस कदूस। वहां पर क्या है? हालेलुया। ये डिफरेंट रैम्स हैं। सराफीन जो हायर लेवल पर है, ये हायरार्की ऑफ एंजल्स है। जो हायर रैम है वो खुदावन को कदूस कह रहे हैं, उससे जो लोअर रैंक वाले हैं वो हालेलुया का कोर्स गा रहे हैं। वर्शिप 2-3 किस्म की हो रही है आसमान पर, 2-3 किस्म की क्वायर्स है। लोअर रैंकिंग एंजल है, हायर रैंकिंग एंजल है। हायर रैंकिंग एंजल उसे कदूस कदूस कह रहे हैं, लोअर रैंकिंग एंजल हालेलुया गा रहे हैं। पर यहां पर आपके लिए सीखने की बात क्या है कि अगर एंजल अपने चेहरे को छुपा रहे हैं, अपने पांव छुपा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो खुदा के जलाल को देख कैसे रहे हैं? अगर उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, आंखों को परों से छुपा लिया है, तो वो खुदा को कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात एक्सप्लेन करता हूं
क्यों मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर से दोनों डायमेंशंस के जो एंजल हैं वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। तो खुदावन के पाक रूह ने मुझे इस पर मुकाशवा दिया कि जितनी बार वो आंखें खोल के खुदा पर दोबारा नजर देखते हैं, खुदा का एक नया जलाल देखते हैं। इवन खुदा के लिए यूनिक है। यानी यूं समझ लें कि जैसे वो जगमग हम लाइटें डालते हैं, वो कलर चेंज करती है, फिर कलर चेंज करती है, फिर कलर चेंज करती है। वो जब खुदा को देखते हैं, खुदा डिफरेंट होता है, फिर देखते हैं, फिर डिफरेंट होता है, फिर देखते हैं, फिर डिफरेंट होता है। फरिश्तों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर में, मिलियंस ऑफ टाइम्स, ट्रिलियंस ऑफ टाइम वो खुदा की हमद कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ खत्म नहीं हो रही क्योंकि उसके डिजाइन, उसकी क्वालिटी, उसकी ग्लोरी खत्म नहीं हो रही। हर बार उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप पुरानी चीज की एक दफा तारीफ कर दें, आपका दोबारा तारीफ करने के दिल नहीं। आपने बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ, आपने बड़े अच्छे जूते पहने हुए हैं, आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है, आपने एक दफा तारीफ कर दी, दोबारा लगाएगा आप दोबारा तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड से वो प्रेज हो गई है। प्रेज का मतलब क्या है? तारीफ। प्रेज का मतलब क्या है? तारीफ। तो जब आपने किसी की एक दफा तारीफ कर दी है, प्रेज इंसानों की भी होती है और खुदा की भी, पर वर्शिप जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रेज हम इंसानों की भी कर सकते हैं और खुदा की भी, क्योंकि ये तारीफ है, पर जो वर्शिप है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। प्रेज बगैर म्यूजिक के भी कर सकते हैं और गाकर भी कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं, पर वर्शिप जो है ये भी म्यूजिक के बगैर हो सकती है। पर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, प्रेज इंसान और खुदा दोनों के लिए मुमकिन हो सकती है, लेकिन वर्शिप जो है सिर्फ खुदा के लिए। हालेलुया। एक और डिफरेंस क्या है प्रेज और वर्शिप में? प्रेज और वर्शिप क्या है? प्रेज जब हम करते हैं हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो वर्शिप है ये खुदा के लिए है और ये लिमिटेड है, ये महदूद है, और खुदा ने हमें अपनी किसके लिए बनाया? हमें अपनी हमद के लिए बनाया। तो ये जो साल है ये समझे हम अपने मास्टर के लिए साल गुजारें, अपनी डिवाइन क्रिएशन के एजेंडे को फुलफिल करेंगे। जब आप इस साल खुदा की हमद करेंगे तो आपका माइंड सेटिस्फाई होगा। ये साया 43:21 के मुताबिक कि मुझे खुदा ने अपनी हमद के लिए बनाया। अगर मैं हमद कर रहा हूं तो मैं उसके डिवाइन एजेंडे, डिवाइन प्लान, डिवाइन पर्पस में हूं, तो मेरी जरूरतों की कोई फिक्र कर रहा है, वो मेरी जरूरतें मुहैया करेगा। इस साल आपके घर में प्रेजेस होने चाहिए, प्रेजेस होने चाहिए। ऑलरेडी आई डोंट नो ऑलरेडी होली स्पिरिट मुझे इंस्पायर कर रहा था। पास्टर साबर, पास्टर जुमा, इस बात की दुआ, मैंने ये ऐसे छोटे छोटे स्पीकर अपने हर कॉर्नर में लगा दिए। मेरे बेडरूम में है, मेरे स्टडी रूम में, मेरे ऑफिस में है, मेरे ड्राइंग रूम में है, इधर भी चर्च में भी। जब मैं प्रेयर करता हूँ किसी भी जगह पर, अगर मैं बेडरूम में कर रहा हूँ या स्टडी रूम में कर रहा हूँ या ड्राइंग रूम में कर रहा हूँ या ऑफिस में कर रहा हूँ या इधर कर रहा हूँ, यहाँ वर्शिप प्ले हो रही है। ऑलरेडी लास्ट मंथ प्रोग्राम से पहले, जो हमारा 18 का प्रोग्राम था उससे पहले ऑलरेडी मैं माउंट कर रहा, होली स्पिरिट मुझे इंस्पायर कर रहा था टू सम वर्शिप। और मुझे नहीं पता था कि खुदा मेरे फादर को ऑलरेडी कह रहा है कि दिस इज द ईयर ऑफ वर्शिप, और जब हम वर्शिप करेंगे हम उसकी प्लानिंग को पूरा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अब मामला आ जाता है कि हम खुदा की हमद नहीं करते। हमद यानी तारीफ दो सूरतों में करते हैं, ब्यूटी की, उसकी खूबसूरती की, उसकी क्वालिटीज की हम तारीफ करते हैं, खूबियों की और उसकी खूबसूरती की, ग्लोरी की। पर जो वर्शिप है, जब हम खुदा की प्रेज कर रहे हैं, हम उसकी ब्यूटी की प्रेज कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती की प्रेज कर रहे हैं, या जो कुछ उसने कर दिया है, what he has done, जो कुछ वो कर चुका है, जो फिनिश कर चुका है, उनकी हम प्रेज करते हैं। पर जो वो करने वाला है,
जो वो करने वाला है और जो वो खुद है उसके लिए हम वर्शिप करते हैं। समझ आ गई डिफरेंस क्या है? प्रेज क्या है कि जो काम खुदावंद आपकी जिंदगी पर ऑलरेडी कर चुका है, यानी आपको औलाद दे चुका है, आपको मैरिज दे चुका है, आपको घर दे चुका है, ऑलरेडी दे चुका है, तो हम उसमें उसकी तारीफ करेंगे, थैंक यू करेंगे। और हमेशा हम जो है तारीफ जो है शुक्रिया के साथ होती है, थैंक यू के साथ होती है, तारीफ शुक्रिया के साथ। अगर कोई चीज वो आपकी जिंदगी में दे चुका है तो हम खुदा की प्रेज करेंगे। सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं कहेंगे प्रेज गॉड, ये तो एक जुमला हो गया ना। प्रेज गॉड के और वर्ड है। मिसाल के तौर पर उसने आपको गाड़ी दी है, घर दिया है, आप उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो असल में आप उसकी प्रेज कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि खुदावंद नामुमकिन था इस एरिया में घर मिलना, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे पास पैसे भी थे, पर खुदावंद रास्ता नहीं बन रहा था, पर खुदावंद तूने मेरे लिए दरवाजा खोला, तूने मुझे कनेक्ट किया, आज इस घर में हूं, मैं बड़े सुकून के अंदर हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। फिर कुछ पैसे वो बढ़ा रहे थे, वो उसके लिए तूने अरेंजमेंट की और मुझे मुहैया किया ऑन टाइम पर, और मैंने वो घर बाय कर लिया या वो गाड़ी बाय कर ली। तो ये क्या है? आप उसको जो काम वो कर चुका है, आप उसके लिए उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रेज। प्रेज किसी बॉस की हो सकती है, प्रेज किसी फ्रेंड की हो सकती है, प्रेज किसी की भी हो सकती है, पर जो हम वर्शिप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की। इसलिए जो लूसीफर है वो मत्ती 4 में यीशु से प्रेज डिमांड नहीं कर रहा, वो कह रहा है इफ यू बो डाउन एंड वर्शिप मी, अगर तू झुक के मेरी प्रस्तिश करे तो सारी किंगडम मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने आपको सीक्रेट बताया था कि अगर आपको गॉड की किंगडम लेनी है, आप वर्शिपर बन जाए। हालेलुया। अगर आपने गॉड का दिल जीतना है, उसके प्रेजर बन जाए। जब आप प्रेज करेंगे आप उसका दिल जीत लेंगे, जब आप उसकी वर्शिप करेंगे आप उसकी किंगडम जीत लेंगे। हालेलुया। तो ये ईयर हमारे लिए बरकतों से लोडेड है, प्रॉस्पेरिटी से लोडेड है, बरकतें आपकी लाइफ में रिलीज होने वाली है। तो इस साल वाकई हम उस चीज को पूरा करेंगे। सून एंड वेरी सून हम एक ग्रैंड वर्शिप प्रोग्राम बनाएंगे। हालेलुया। इसमें हम बच्चों के नए टैलेंट को भी लेकर आएंगे और प्रस्ताव रावल की वर्शिप भी सुनेंगे और उसको ग्रैंड तरीके से करेंगे, स्पिरिचुअल तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें लोगों को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म होगा। आमीन। अभी शादो नादर मिलता है देखने में कि लोगों को रूह कुदुस का बपतिस्मा होगा। इवन बड़े बड़े रिवाइवल में प्रोग्राम में शादो नादर ही मिलता है कि किसी को रूह कुदुस का बपतिस्मा होगा। ड्राइनेस है, पर हम इस चीज को इनिशिएट करेंगे 2023 जो साल स्टार्ट हो चुका आज के दिन से, कि आप दोबारा रूह कुदुस से मामूल होंगे, आप दोबारा रूह कुदुस से रिफिल होंगे। हर बंदे को रिफिलिंग चाहिए रूह कुदुस से। हर मॉर्निंग जब आप वर्शिप करते हैं, तारीफ करते हैं, सुबह उठकर वर्शिप करें, ग्लोरी टाइम सेट करें। अभी मैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहा हूं और मैं मैसेज को क्लोज करूंगा। इस साल जैसे कि ऑलरेडी हमारे फादर ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये साल जो है आपकी प्रेज का साल है। मैंने आपको उसके अंदर से निचोड़ निकाल के दे दिया कि ये साल स्पिरिट और प्रॉस्पेरिटी का साल है जो कि प्रेज से कनेक्टेड है। तो अपना टाइम टेबल सेट कर लें। टाइम विद जीसस, टाइम विद यहोवा, टाइम विद होली स्पिरिट, टाइम विद गॉड। कोई भी टाइटल दे दें, आपका जाती टाइटल हो। टाइम विद गॉड, टाइम विद जीसस, टाइम विद होली स्पिरिट, टाइम विद यहोवा। कोई भी टाइम दे दें उसको, यानी कोई भी टाइटल दे दें आपको जो दिल को अच्छा लगे। हालेलुया। वो टाइम डिसाइड करें और उस टाइम 1 घंटा, कम से कम 2 घंटे, कम से कम 3 घंटे, जितने घंटे आप पॉसिबल, एज मच एज यू कैन, आप उसमें खुदा के हुजूर क्या करनी है, क्या करनी है उसकी वर्शिप करें, शुक्रगुजारी करें, वर्शिप करें, शुक्रगुजारी करें। मैं आपको कह रहा हूं अपनी जरूरतें ना मांगे। जब आप ये आयत माइंड में रखें कि तूने मुझे अपनी मिसाल के तौर पर ऐसे मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करूंगा, मुझे इसकी ऐसे समझ आई है कि आप किसी को घर में नौकर रख लेते हैं और आप उसको कहते हैं ये सारी चीजें तू एंजॉय कर सकता है, एसी, फ्रिज, खाना, किचन, सब कुछ तेरा है, सैलरी भी तुझे फुल्ली मिलेगी, पर तूने इसको उठ के मेरी तारीफें कर दी, मेरे कमरों।
मेरी सुर्खी, मेरी नेल पॉलिश, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, तू कर, मेरे बालों, मेरी स्माइल, तो वो बंदा आपकी तारीफ कर रहा है, और जब आपकी सिर्फ तारीफें सुन के आप खुश हो रहे हैं। तो आज मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, सबके लिए, मर्द और औरतों के लिए। आपको पता आप तारीफ के भूखे क्यों हैं? आपको पता आप तारीफ के भूखे क्यों हैं? क्योंकि आप खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। तो जब आप उसके डीएनए पर बनाए गए हैं तो खुदा को तारीफ पसंद है। वो एक क्रिएशन ही, जरा सोचिए, ऑलरेडी उसके पास करूबीम है, ऑलरेडी सरफीम है, ऑलरेडी चैरब है, ऑलरेडी थ्रोन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल है। इतने एंजल है कि मैं उनकी टाइप्स बयान करूं तो तकरीबन 62 टाइप के, 66 टाइप के एंजल्स हैं आसमान के ऊपर, और उसके बावजूद वो इंसान बना रहा है और ये साया को बता रहा है कि इनको मैंने अपनी हमद के लिए बनाया, सिर्फ मेरी तारीफ कर। हालेलुया, समझ आ रही है? तो आपके लिए तो आसानियां पैदा कर दी हैं खुदा ने कि आप जस्ट उसकी तारीफ करें, उसे मक्खन लगाएं, सपोर्ट कर, दोपहर को उसे मक्खन लगाएं, पैम्पर करें, उसे लाड करें, आप बरकतों को रिसीव करें। आपको भिखारियों की तरह जाने की जरूरत नहीं है, एड़ियों पर रगड़ने की जरूरत नहीं है, कोनियों पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ी वगैरह पर, ओ जी मैं कोनियों पर जा रहा हूं, मुझे मेरी मन्नतें मिलेंगी। नो 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 नो, जस्ट उसकी हमद करें, जस्ट उसकी सिताइश करें, उसके नाम को जलाल दें, चीजें खुद चल के आपके पास आएंगी। नहीं यकीन, मैं क्लोज करूंगा उबैद रसूल के घराने के ऊपर, हम देखेंगे और इस पर उसके बाद हम प्रेयर करेंगे, हम प्रेयर्स करेंगे। प्रेयर नहीं करेंगे इस साल। इस साल इफाता चर्च ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इजराइल, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रेज करेंगे। आए हम देखेंगे, हवाला निकालेंगे उबैद रसूल के घराने के बारे में, जहां ऐद का संदूक उनके घर में रह गया, जो जल्दी निकालेगा ब्लेसिंग को रिसीव करेगा। गॉड की बरकतें पास्टर एना ने रिसीव कर ली। आमीन। जैसे उन्होंने वो हवाला निकाला था, अनॉइंटिंग मुझ पर उतर आई थी। कौन सा चैप्टर है? दूसरा सैमुएल 6 बाब। दूसरा सैमुएल पढ़िए, आप ही पढ़ दें। दूसरा सैमुएल 6 बाब पढ़ दें। और दाऊद उस दिन खुदावन से डर गया और कहने लगा कि खुदावन का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावन के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती उबैद ऊपर से करेगा के घर ले गया और खुदावन का संदूक। इस साल ये संदूक इफाता चर्च में आ गया। ये मैं आपको मिस्त्री दे रहा हूँ। इस साल भले हम गरीब हैं, कंगाल हैं, हमें कोई नहीं जानता, ये समझ लें कि इस साल पूरे वर्ल्ड में उबैद और अदूम का जो खानदान है वो इफाता चर्च है। कोवेनेंट बॉक्स आपके पास आ गया। आपने ये इमेजिन करना, आगे बढ़े, क्या हुआ? खुदावन का संदूक जाती उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावन ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। किसको बरकत दी है? अपोस्टल जो हजरत मुगीरा और उसकी सारी ब्रांचों को खुदावन बरकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ उबैद अदूम और सिर्फ उसको नहीं, सारे घराने को, जितनी इफाता फैमिली है, खुदा बरकत देने वाला है। आगे बढ़ेगा, आगे पढ़ते जाए। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावन ने उबैद अदूम के घराने को। आपकी खबरें प्राइम मिनिस्टर तक जाने वाली है। हालेलुया। जब मैं जेट बाय करूंगा, वजीर आजम हिल जाएगा, ये क्या हो रहा है? कौन पाकिस्तान में जेट ले रहा है? आमीन। जब आप मरी पूरा पहाड़ खरीद लेंगे और कहेंगे यहाँ हमने रेस्ट हाउस बनाना है, गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी। आपकी खबरें कॉर्नर पर जाने वाली हैं। पीपल इन पावर आपकी न्यूज सुनने वाले हैं। पीपल इन पोटेंशियल आपकी खबरें सुनने वाले हैं, यीशु के नाम से। ओके, पढ़ते जाएं। और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। किसकी सबब से बरकत हुई है? संदूक की। उन्होंने वर्शिप की है
ओके, पढ़ते जाएं। तब दाऊद गया और खुदा के सलूम को उबेद एदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के सलूम के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद तुतान का देख रहे हैं आप, ये बाइबल हमारे पास्टर पढ़ते हैं, बोलते हैं लफ्ज, पर आज अगर कोई चर्च में नाचे उस पे फतवा लगा देते। तो कैसी ये रियाकार बाइबल सुना रहे हैं। लिखा है वो अपने पूरे जोर से खुदा के हजूर क्या किया है, उसने नाचा। आमीन। आप उसी पास्टर को अपने किसी प्रोग्राम में बुला लें, किसी वलीमे पर, हकीके पर, शादी पर, वो आपका डांस देखकर खुश हो रहा होगा, वाह बहन बड़ा डांस कर रही है, आज पता लगा। और वही बहन बाजी, वही बहन, वही सिस्टर खुदा के दूर नाच रही हो, फतवा लग देगा। ये कह लेंगे हाइपोक्रेटिक फकियों फरीसियों वाली मेंटालिटी है, पर हमने उसको नहीं फॉलो करना, हमने बाइबल को फॉलो करना है। लिखा दाऊद उसके हजूर पूरे जोर से नाचा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। और दाऊद तुतान का अबूद कहने का, सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के सलूम को ललकारते और नरसिंगा। मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, वाल्टन का एक मशहूर पादरी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पापा उसको जानते हैं, बड़ा मशहूर पादरी है, पापा का फ्रेंड भी है, बड़ा फेमस पास्टर है वाल्टन का, बड़ा फेमस, बहुत फेमस पास्टर है। उसकी हमारी वीडियो ये किसी बच्चे ने वायरल कर दी, मुझे उसने कॉल की, हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है, कह रहा पास्टर साहब बाज आए आप अपने चर्च में नाच रंग कर रहे हैं। नाच रंग, मैंने कहा वो क्या होता है नाच रंग? वो गलतियों के खत में लिखा हुआ है नाच रंग जादूगर फलां 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 आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मैंने कहा क्या नाच रंग क्या हो रहा है? हम कोई डीजे पर नाच रहे हैं, हम कोई कपड़े उतार के नाच रहे हैं, क्या मतलब नाच रंग केस किसको? आप शराब पी कर नाच रहे हैं, नशे में नाच रहे हैं, क्या नाच रंग क्या है? मतलब मुझे एक्सप्लेन करें। उस नहीं बस ये अच्छी नहीं है, मतलब बेटियों बहनों का चर्च में नाचना चाहिए, क्या कौमें क्या सोचेगी? मैंने कहा सोचती है जो भी सोचे, हम वो करेंगे जो हमें खुदा में मैं आपको कहा था रात को ही कि मुझे खबर आने वाली है, ऑलरेडी मुझे फील हो गया था ये जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं से खबर आने वाली है। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ पर दुश्मन जेलस होने वाले हैं, दुश्मन जेलस होने वाले हैं। कि उबैद और अदूम के घर जो ऐद का संदूक गया है, बादशाह जेलस हो गया अपने दिल में कि ये वर्शिप करके कंगाल उबैद और अदूम का घराना अमीर हो गया, तो मैं इसको वापस अपने घर में लेकर आऊं, सिर्फ दौलत शोहरत मेरे पास होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। खुदावंद के सदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का सदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। क्या देखा, क्या करते? एग्जैक्टली एक्शन लिखे हुए हैं, मूव्स लिखे हुए हैं। क्या कर रहा था वो? उछलते कैसे हैं? जरा उछल के दिखाओ साहब, समझ आ रही है? ये है उछलना। कि कोई और कोई उछलने का, कोई खुदा के उछलने का कोई तरीका फर्क है? तो किसी थियोलॉजी में बताया कि अगर आपने डिस्को में नाचना है या इंडियन सॉन्ग पर या अंग्रेजी सॉन्ग पर आपने नाचना है तो उछलने का तरीका फर्क है, और खुदा के घर उछलने का तरीका फर्क है। क्योंकि ऐसी कोई थियोलॉजी है, कोई डॉक्ट्रिन है, कोई बताएगा मुझे? पर यहाँ पर उसकी बीवी देख रही है कि वो खुदा के हुजूर क्या कर रहा है, नाच रहा। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते नाचते देखा तो उसने अपने दिल में से हकीर जाना। क्या जाना है उसे? हकीर जाना। जो लोग आपको हकीर जानेंगे उनका खुदा रहम बंद करने वाला, उनके खुदा दरवाजे बंद करने वाला। जो लोग हमें क्या जानेंगे? नाचीर जानेंगे, हकीर जानेंगे, वो कहेंगे वो इनका भेजा फ्राई हो गया कि क्या सारे ऐसे फुड़क रहे हैं चर्च के अंदर, सारे की कर रहे, पागल हो गए हैं। मैं आपको कह रहा हूं अगर कोई इस मेंटालिटी से यहाँ होगा खुदा उसके डोर शट डाउन कर देगा। लिखा मीकल की सारी जिंदगी औलाद नहीं हुई, उसका रहम बंद हो गया। जादूगर ने नहीं किया, खुदा ने रहम बंद कर, उसने कहा तो मान गए, खत्म। आगे बढ़े। आपको पता है कि परस्तार को, वर्शिपर को, जो रियल वर्शिप कर रहा है उसको हकीर जानना बहुत बुरी बात है।
آج جب ہم ورشپ کر رہے تھے سب لوگ اچھی ورشپ کرتے روم میں تھے پر میں اس بچے پال کو دیکھ رہا تھا وہ اپنی دنیا میں تھا وہ ان کے لیے زوردار تعلیم دیں گے پال کے لیے تو میں آبزرو کر رہا تھا بہت اچھی سارے ورشپ کر رہے پر پال ایک اور ہی ریام میں گیا ہوا تھا ایک اور ہی ڈیمینشن میں تھا مجھے نہیں پتا وہ کیا خدا کی عبد کر رہا تھا لیکن خدا نے اس کی دعا سنی ہے جو بھی ہے تو یہاں دیکھیں کہ میکل نے اسے حقیر جانا جو کوئی آپ کو اگنور کرے گا جو کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا آپ کا نقصان نہیں ہوگا خدا اس کے ڈور بند کر دے گا خدا اس کے ڈور بند کر دے گا آگے بڑھے گا اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا اور داؤد نے سوگتی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں اور جب داؤد سوگتی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے انبیاء کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا جیسے کوئی بانگا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہی ورڈ بولتے ہیں پاسٹر بے حیائی چرچ میں آپ ناچیں بے حیائی ہے ڈسکو میں ناچیں ڈی جے پر ناچیں وہ مزہ ہے انجوائے ہے یہ کیا ہے یہ ایگزیکٹلی سیم وہ لیڈی ڈیوڈ کو کہہ رہی ہے کہ آج تو نے بہت بڑی بے حیائی کی پر دیکھیں پنشمنٹ کیا ہوگا آگے پڑھیں داؤد نے میکل سے کہا یہ وہ خداوند کے رسول تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا خدا آپ کے دشمنوں کی چیزیں چھین کر آپ کو دینے والا ہے وہ آپ کو اس طرح کے لفظ بولیں گے جو بھی ان کا رتبہ ہے جو بھی ان کا رینک ہے جو بھی ان کی ڈیمنشن ہے جو بھی ان کی پروسپیرٹی ہے خدا ان کے سے چھین کر آپ کو ہینڈ اوور کرنے والا ہے 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 آگے بڑھے گا میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی نظر میں نیچ ہوں گا اور جن لونڈیوں کا ذکر تم نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد ہی رہی مرتے دم تک کیا رہی بے اولاد ہی رہی رحم بند کر نمبر 1 اس کے فادر کی ساری دولت ٹرانزیکشن کر دی داؤد کے اکاؤنٹ میں نمبر 1 اس کی بیٹی کا رحم بند کر دیا پنشمنٹ چیک کریں جب آپ ریئل ورشپر ہیں اور خدا کے حضور صرف آواز نہیں ساز نہیں مووز کے ساتھ جب آپ خدا کے دور ورشپ کر رہے ہیں میرے ڈیڈی کی طرح ہاللیلویا میں ان کی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک سب کو نظر آ رہی تصویر ہاللیلویا کتنوں کو نظر آ رہی ہے تو ورشپر کے لیے ایج نہیں ہے ہم خدا کی نظر میں بچے ہیں آمین آمین سب کھڑے ہوں گے اب ورشپ کریں گے کیونکہ this is the year of praise